Ninth class, lesson number 1. The fun they had. The story we shall read is set in the future, when books and schools, as we know now, them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. ये कहानी उस समय की है, भविष्य की, जब किताबें और स्कूल रहते थे, जैसा कि हम जानते हैं तब नहीं होंगे। तो किस तरीके से बच्चे स्कूलों में या घरों में पढ़ेंगे, तो आप कुछ ये चित्रों से देख सकते हो कि बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे। ई लर्निंग से, कंप्यूटर से, वे वर्चुअल क्लास से, रोबोट से, या ई टेक्स्ट, मतलब आपको मोबाइल पे कुछ मैसेज भेजे जाएंगे, कुछ वीडियोस भेजे जाएंगे, उनसे ही आपकी पढ़ाई होगी। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन के बारे में। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." यहाँ तक कि मार्गी ने उसके बारे में उस रात अपनी डायरी में लिख डाला। पृष्ठ पर, जिस पर तारीख पड़ी थी 17 मई 2157, उसने लिखा, आज टॉमी को वास्तविक पुस्तक मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on page. वह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वे एक छोटे बच्चे थे, उनके दादा ने उनसे कहा था कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर लिखी जाती थीं। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. उन्होंने पृष्ठों को पलटा जो कि पीले थे, और उनमें सलवटें पड़ गई थीं, और उनमें छपे पृष्ठों को पढ़ना आश्चर्यजनक रूप से मज़ेदार था, जो अभी भी स्थिर थे, बजाय कि जैसे कि हम जानते हैं कि शब्दों पर स्क्रीन पर चलते हैं। वे देखकर पढ़ना, और जब उन्होंने पहले के पेज को पलटा तो उसमें वही शब्द थे जो उन्होंने इसे पहली बार पढ़ने पर पाया था। Second point, G, said Tommy, "What a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away." Same with mine, said Margie. She was 11 and had not even seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." What's it about? School? जी, टॉमी बोला, कितनी बर्बादी है। जब तुमने एक किताब पढ़ ली तो मैं सोचता हूँ उसे फेंक देना चाहिए।
हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं और उसमें बहुत सारी किताबों की जगह है। मुझे उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। यही बात मेरे साथ है, मार्गी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी। वह उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने। वह 13 वर्ष का था। उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ मिली? मेरे घर में, उसने बिना आंख उठाए कहा, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। अटारी में या छत पे ऊपर कमरे में। यह किस बारे में है? स्कूल के बारे में। थर्ड, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, what's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. मार्गी तिरस्कारपूर्ण थी, बहुत शर्मिंदा में थी। स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है? मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्गी हमेशा से स्कूल से नफ़रत करती थी, पर अब वह पहले से ज़्यादा नफ़रत करती थी। यांत्रिक शिक्षक उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता जाता था और वह बुरे से बुरा करती जाती थी, जब तक कि उसकी माँ ने अपना सिर नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। 4. He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the question were asked. That wasn't so bad. वह एक गोल मटोल लाल चेहरे वाला छोटे कद का व्यक्ति था और टूल्स, डायल्स और वायर्स का बक्सा था। वह मुस्कुराया। वह उसे एक सेब दिया और शिक्षक को एक तरफ ले गया। मार्गी ने उम्मीद की थी कि वह उस शिक्षक को फिर से ठीक कर सकेगा, पर वह ठीक करना जानता था और लगभग 1 घंटे बाद वह वापस वहीं था, बड़ा, काला और बदसूरत, एक बड़े स्क्रीन के साथ जिस पर सभी पाठ दिखाई दे रहे थे। वह प्रश्न पूछे जा रहे थे, पर वह इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. वह हिस्सा जिससे वह सबसे ज़्यादा घृणा या नफ़रत करती थी, वह स्लॉट जहां वह अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखती थी, उसे उन्हें एक पंचकूट भाषा में लिखना होता था, जो कि उसे 6 वर्ष की आयु में सिखाई गई थी, और यांत्रिक शिक्षक जरा सी देर में मार्क्स बता देता था। 5th point. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually,
The overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" इंस्पेक्टर कार्य कर मुस्कु समाप्त करके मुस्कुराया और उसके सिर पर एक थपकी दी। उसने उसकी माँ से कहा, "मिसेस जोन्स, यह इस नन्ही बालिका की गलती नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि भूगोल का सेक्टर थोड़ा तेज हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है। मैंने उसे औसतन 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया है। वास्तव में बालिका की प्रगति का पैटर्न संतोषजनक है।" और उसने एक बार फिर मार्गी के सिर पर थपकी दी। मार्गी निराश हो गई थी। वह उम्मीद कर रही थी कि वे शिक्षक को वहां से ले जाएंगे। वे एक बार टॉमी के शिक्षक को लगभग 1 माह के लिए ले गए थे, क्योंकि इतिहास का सेक्टर लगभग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था या खाली हो गया था। इसलिए उसने टॉमी को कहा, "कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा?" 6 point. Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago," he added loftily, pronouncing the word carefully. "Centuries ago." Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." टॉमी ने अपने काम को बहुत श्रेष्ठता की निगाह से देखा, क्योंकि वह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं था। मूर्ख, वह पुराने प्रकार का स्कूल था जो कि कई कई 100 वर्षों पहले था। उसने गर्व से कहा, "अपने शब्द सावधानी से बोलते। शताब्दियों पहले मार्गी को चोट पहुंची। ठीक, मुझे नहीं मालूम कि उतने समय पूर्व का स्कूल किस प्रकार था।" उसने कुछ समय के लिए बुक को अपने कंधे के ऊपर से लेकर के पढ़ा, फिर कहा, "कोई बात नहीं, उनके पास शिक्षक है." Sure, they had a teacher, but it wasn't regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. निश्चित ही उनका भी शिक्षक होता था, पर वह एक नियमित शिक्षक नहीं था। वह आदमी ही होता था। एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है? हाँ, वह लड़के लड़कियों को बातें बताता था और उन्हें होमवर्क देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। 7th point. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, "I would not want a strange man in my house to teach me." Tommy screamed with laughter. "You don't know much, Margie. The teachers didn't live in house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing, sure, if they were the same age." एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं होता है। निश्चित ही होता है। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा शिक्षक।
वह नहीं हो सकता। एक आदमी एक शिक्षक जितना नहीं जान सकता। वह लगभग उतना जानता है, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी इतने विवाद के लिए तैयार न थी। उसने कहा, मैं एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर में मुझे शिक्षा देने के लिए नहीं रख सकती। टॉमी जोर से हंस उठा। मार्गी, तुम्हें ज़्यादा मालूम नहीं है। शिक्षक घर में नहीं रहता। उनकी एक खास इमारत बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बालक वहाँ जाते थे और सभी बालक एक सरीखी बातें सीखते थे, निश्चित ही यदि वे एक उम्र के ही हों। 8th point. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl in it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I did not say I did not like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up. Not yet, Mamma. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? किंतु मेरी माँ तो कहती है कि एक शिक्षक को हर बालक व बालिका जिसे वह पढ़ाता है उसके लिए एडजस्ट करना होता है या उसके मुताबिक पढ़ाना होता है और हर प्रकार के बालक को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो वे इस तरह नहीं करते थे। यदि तुम यह पसंद नहीं करती तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने यह नहीं कहा कि मैं यह पसंद नहीं करती, मार्गी ने तेजी से कहा। वह उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने बात अभी आधी ख़त्म नहीं की थी कि मार्गी की माँ ने पुकारा, मार्गी, स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं मम्मा, अभी, मिसेस जोन्स ने कहा, और संभवतः टॉमी का भी वक्त हो गया है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पुस्तक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? Point 9. Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on the waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. हो सकता है, उसने शांत भाव से कहा। वह सीटी बजाता उस धूल भरी किताब को अपनी बगल में दबाए चला गया। मार्गी स्कूल कक्ष में गई। वह उसके बेडरूम के पास ही था और यांत्रिक शिक्षक ऑन था और उसका इंतज़ार कर रहा था। यह हमेशा उसी समय पर होता था, प्रतिदिन शनिवार रविवार को छोड़कर। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ यदि नियमित समय पर पढ़ेंगी तो वे बेहतर सीख सकती हैं।
स्क्रीन जल रहा था, प्रकाशमय हुआ और उसने कहा, आज का अंकगणितीय पाठ उचित भिन्नों को जोड़ने का है। कल का होमवर्क ठीक स्लॉट में दें या छोड़ें और या दिखाएं। Point 10. Margie did so with his sign. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1 by 2 and 1 by 4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी ने एक दुख भरी सांस छोड़कर ऐसा ही किया। वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब दादा के दादा एक नन्हे बालक थे। आस पड़ोस के सब बच्चे आते, स्कूल के अहाते में हंसते, शोर करते, स्कूल कक्ष में साथ बैठते, दिन खत्म होने पर साथ साथ घर जाते। वे एक सरीखी बातें सीखते, अतः वे अपने होमवर्क में एक दूसरे की सहायता करते व उसके बारे में बातें करते। सभी शिक्षक भी लोग ही होते। यांत्रिक शिक्षक स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, दिख रहा था जब हम, और वो ही कह रहा था, जब हम 1/2 व 1/4 भिन्न को जोड़ते हैं। पर फिर भी मार्गी सोच रही थी कि किस तरह पुराने समय में बालक एक दूसरे से प्रेम करते थे। वह उस मौज के बारे में सोच रही थी जो उन्हें मिला था, पुराने लोगों को पुराने स्कूलों में पढ़ने पर मिला था। तो हमारा पाठ यहीं ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से रीड करिए और हिंदी में इसके मीनिंग को समझिए।